I've done the live. I can start. Yeah. Sure. Yeah. Hi, good afternoon. This is Dr. Chetna Jain, Director and Senior Consultant at Cloud9 Hospital, Sector 14, Gurgaon. A bit about Cloud9. Cloud9 is a specialty center, a super specialty center when it comes to high risk pregnancy and delivery of difficult cases. We have a very high level of NICU care, and we are able to salvage kids as small as 600, 650 grams. So we are very proud of our pediatric team and the kind of deliveries we handle and the outcomes. So thank you, Cloud9, for providing these kind of services to our patients so that we are able to deliver good and competent services at a very affordable price. So coming to today's topic, today I'm not going to take an obstetric topic. We are going to talk on the breast issues. So one is about, so I'll divide it into two. One is a non-pregnant breast and the other one is a lactating breast. So let's talk about breast cancer. There are other diseases also in the breast, like non-cancerous tumors, which are known as fibroadenoma. These are essentially non-cancerous, and we are not talking about them today. They are also called breast mouse, and they can be left behind with just simple monitoring. However, breast cancer is something which is very severe, or I would say it's a janleva disease if not diagnosed in time. The advantage is this organ is outside and can easily be diagnosed if we are a little bit careful, and either we prevent the disease or diagnose it so early so that we treat it and then get rid of the problem forever, which is quite possible. Women have lived all their life very well after doing an adequate treatment of an early disease. So, who are at risk of breast cancer? That's a very important topic. Now, the risk is higher when you have a first degree relative like a mother or sister. But if you have a second degree relative like your grandmother or your aunt like Masi or Bua, the chances are little less. The risk is also higher when your relative got cancer before her menopause. The hereditary breast cancer is seen in about 5% patients. That means if there are 100 cases of breast cancer, only 5 will be hereditary. Now, what are the risk factors? So, the more the number of relatives affected, if one relative is affected, the risk is less. If more numbers of relatives are affected, the risk is more. If the close relative, the first degree affected, the risk is more. If second degree or third degree affected, the risk is pretty less. Then age of diagnosis, if the age is less than 45, the risk is more. Age more than 45, your risk is less. If the woman who had disease was premenopausal, that means menopause is not achieved, then the risk is more. And if she was postmenopausal, the risk is less. Now, the most important thing is whether she was BRCA1 positive or no. Now, BRCA1 or BRCA is a gene which is run into the families, and if it is positive, then women have 70 to 80% lifetime chances of developing a breast cancer. So it is very essential that if you have a close family member to test yourself for BRCA, and if you're BRCA negative, your chances of having the disease is pretty much less. Now, how do you screen for breast cancer? So there are various methods to screen. One is a genetic method, second is imaging, and third is you must try to prevent cancer. Now, what are the methods for genetic screening? So BRCA, BRCA1 and BRCA2, it is present in less than 1% of the population. That means we can't be testing the whole population to know who's BRCA positive. It will not be cost effective. Now, BRCA is responsible for 5 to 10% cases of breast cancer, but those who are positive have 70 to 80% chance. The live example is Angelina Jolie, who had a family history. She was BRCA positive and she did mastectomy. That means she excised her breast and put silicone implants. हिंदी में आज सो ये जो BRCA1 जीन है, इसके साथ में कोलन और ओवेरियन कैंसर भी जुड़ा होता है. इसका मतलब ये कि अगर फैमिली में किसी का BRCA1 या पॉजिटिव है, तो वो लोग का
जो मेल हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, और फीमेल्स हैं उनके अंदर पैनक्रियाटिक कैंसर, कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो ब्राका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ब्राका हमें देखना होगा। अब जेनेटिक टेस्टिंग किसे करना चाहिए? आप पूरी पॉपुलेशन का जैसे मैंने बताया नहीं कर सकते। हम जेनेटिक टेस्टिंग सिर्फ उन लोगों का कर सकते हैं जो कि हाई रिस्क हैं। हाई रिस्क कैसे? या तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि वो ब्राका पॉजिटिव हैं, या उनकी फैमिली के अंदर किसी जिसका हुआ है वो ब्राका पॉजिटिव निकले, या जिनका हुआ है उनकी एज 45 से कम थी, या जो रिलेटिव्स हैं उनके अंदर पैनक्रियाटिक, ब्रेस्ट, ओवेरियन, कोलन कैंसर है। जो भी मेंबर्स होते हैं जिनके अफेक्टेड फैमिली मेंबर्स हैं उस घर में फीमेल मेंबर्स को स्पेशली ब्रेस्ट अवेयरनेस दे देनी चाहिए 18 एज तक। मतलब जब वो 18 इयर्स के हो जाते हैं तब उन्हें बता देना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट के लिए स्क्रीन करना है। उसके बाद में जो एनुअल क्लिनिकल या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है कि खुद ही देखो अपने ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दैट कैन बिगिन एट द एज ऑफ 25 साल की एज पे कर सकते हैं। ये जो स्क्रीनिंग है वो साल में एक बार होगी, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है जिसके मल्टीपल रिलेटिव्स हैं फैमिली के अंदर, तो उनकी रिस्क साल में उनका जो टेस्टिंग है वो साल में 2 बार होगा। अब ये तो हो गई बात हिस्ट्री के बेसिस पे जेनेटिक टेस्टिंग की, जो कि BRCA1 है ना। दूसरा तरीका होगा इमेज करने का, जैसे आप सुनते हैं। अब इमेजिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं? तो 3 टेक्निक से हम इमेजिंग करते हैं: अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम और MRI। इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव या सबसे ज़्यादा जो डायग्नोसिस करता है वो MRI होता है। अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जिन लोगों को ब्राका पॉजिटिव है उनको ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। तो साथ में हम ऐसा करें कि साल में एक बार इंटरनल स्कैन करें, TVS ट्रांसवैजिनल स्कैन, ये एज ऑफ 35 से 45 के बीच में, और साथ में एक ब्लड टेस्ट करें CA-125। तो ये दोनों मिला के पता चल सकता है कि ओवरी के अंदर कैंसर डेवलप हो रहा है या होने के चांसेस हैं या नहीं। एक और तरीका है जो बहुत ड्रास्टिक है, शायद इतना एप्लीकेबल नहीं हो सकता और हमारे लिए एक्सेप्टेंस लो होगी, बट फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है तो 35 से 40 की एज में एक बार फैमिली कंप्लीट होने के बाद दोनों साइड की ट्यूब और ओवरीज निकाली जाती है, और साथ में HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देते हैं ताकि हड्डियां वगैरह कमजोर ना, हड्डियां, बाल, स्किन वगैरह खराब ना हो। तो ये भी एक तरीका होता है। बट ये सब ड्रास्टिक मेजर्स तो उन लोगों के लिए हैं जिनके मल्टीपल फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं। अगर एक आध फैमिली मेंबर अफेक्टेड है या ब्राका नेगेटिव है तो ये सब करने की जरूरत नहीं होती। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग शेड्यूल क्या होता है? मतलब ये कि आपको कितनी बार ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करना चाहिए, कब कब करना चाहिए। तो अगर आपकी उम्र 20 से 39 साल है, 39 ईयर्स है, तो आप ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन एवरी 3 ईयर्स कर सकते हैं। 3 ईयर्स में आप एक बार क्लिनिशियन के पास जाएं और वो डिसाइड कर लेंगे क्या टेस्ट करना है आपका, और चेक किया जा सकता है। जब आपकी एज 40 हो जाती है तो 40 से 54 के बीच में ये चेकअप एवरी ईयर होगा, सालाना, साल में एक बार। जब 55 प्लस हो जाती है तो आपका ये चेकअप साल में 2 बार होना चाहिए। अगर किसी के फैमिली में मल्टीपल रिलेटिव्स हैं तो फिर उनको ये सारा शेड्यूल सूट नहीं करता, फिर उनका शेड्यूल जो है वो डॉक्टर मिलके डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कौन सा टेस्ट होना है, अल्ट्रासाउंड, MRI या मैमोग्राम, और कब कितनी बार करना है, साल में एक बार करना है या 2 बार करना है या उससे ज़्यादा करना है। बट सभी लेडीज को 18 के बाद या 20 के बाद साल में एक महीने में एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, महीने में एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद से जरूर करना चाहिए। अब करने का तरीका ये होता है कि आप शीशे के सामने बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाएं, हाथ को नीचे करें और देखें कि दोनों निपल्स एक जैसे हैं, कोई रेडनेस तो नहीं है, अंदर में स्किन कहीं खिंच तो नहीं रहा, कहीं डिम्पल तो नहीं पड़ रहे, या ऊपर से स्किन तो नहीं निकल रही है, निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। उसके बाद आप क्या करें, कमर पर हाथ रखें और अपने शोल्डर्स को आगे झुका के टाइट करें। उसमें उसके बाद देखें कि आपकी ब्रेस्ट की शेप चेंज तो नहीं हो रही है। अगर वो भी ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, दोनों हैंड्स को हेड के पीछे ले जाएं इस तरह से, और उसके बाद में आप फिर से देखें कि दोनों ब्रेस्ट के बीच में कोई फर्क तो नहीं है। उसके बाद आप क्या करें, एक हाथ को कमर पे रखें और दूसरे हाथ से अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करें और देखें कि आपको कुछ फील हो रहा है क्या, और यहाँ से आप अंडर आर्म्स में भी हाथ डाल के देखें कि वहाँ पे कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है। आपको यहाँ पे भी, यहाँ की जो ऊपर की कॉलर बोन होती है उसके ऊपर भी
प्रेस करके देखना चाहिए, और ऐसा ही दूसरी साइड करें हाथ कमर पे रख के, तो उससे काफ़ी आपको पता चलेगा। फिर क्या करें आप तीसरी बार में, आप हाथ पूरा ऊपर उठा लें और फिर ऐसे फ्लैट फिंगर करके और फिर ऐसे धीरे धीरे गोल गोल घुमा के आप एग्जामिन करके देखें कि आपको कहीं कुछ फील तो नहीं हो रहा है। इसमें पहले हल्के प्रेशर से करें, फिर मीडियम प्रेशर से करें और फिर दबा के करें अच्छी तरह से, और पूरे ब्रेस्ट पे बाहर से अंदर की तरफ सब तरफ फिंगर घुमा के करें कि कहीं कुछ तो नहीं है। स्मॉल सर्कुलर मूवमेंट्स में देखना चाहिए। उसके बाद में और निपल के पीछे भी चेक करना चाहिए, तो निपल को भी आसपास से दबा के देखिए कि आपको कोई मांस तो महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद आप लेट जाएं, लेट के फिर हाथ ऊपर कर लें और फिर से वापस ब्रेस्ट को सर्कुलर मूवमेंट्स में एग्जामिन करें। तो ये सब करने से आपको अगर कोई चीज में फर्क लगता है, अगर साइज अलग अलग लगता है, अगर एसिमेट्रिकल लगते हैं कि अलग अजीब दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, शेप में बहुत फर्क है, ऊपर की चमड़ी के कलर में फर्क है, या कोई गांठें महसूस हो रही है, या चमड़ी में अंदर खिंचाव हो रहा है, या एक ब्रेस्ट में बहुत स्वेलिंग है और उसके ऊपर नसें खिंची हुई दिख रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसी तरह से निपल्स का देखें, अगर निपल्स अंदर चली गई हैं या क्रैक है, या निपल के ऊपर कुछ एक्जिमा जैसा हो गया है, जैसे एलर्जी जैसा, या निपल एक साइड में पुश हो गई है, या निपल से ब्लीडिंग आ रही है, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है, अगर आपका जो निपल का बेस है जिसे एरियोला कहते हैं वो रेड हो गया है या थिक हो गया है, तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि आपके ब्रेस्ट में कोई इश्यू हो सकता है और आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मैमोग्राम के बारे में बात करेंगे, तो मैमोग्राम एज 40 पे स्टार्ट करते हैं, और अगर जिसकी भी लाइफ टाइम रिस्क 20 से 25% से ज़्यादा है, उसे एक साल में एक बार मैमोग्राम और एमआरआई करना होगा। एमआरआई जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन कोई भी एक मोडालिटी पूरा ट्रीटमेंट नहीं देता। अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी तो बहुत लो है, हालांकि हम करवाते हैं, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो साथ में मैमोग्राम करना भी उचित रहेगा, तो दोनों मिलके एडिक्वेट डायग्नोसिस कर पाएंगे। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को? एक तो अल्कोहल इनटेक कम करना होगा, बॉडी वेट मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर एक मेडिसिन आती है टेमॉक्सिफेन, वो डॉक्टर की एडवाइस से ली जा सकती है। और लास्ट में जिन जो बहुत ही हाई रिस्क हैं, 70-80% लाइफ टाइम चांसेस हैं, ब्राका पॉजिटिव हैं, तो उन लोगों को ब्रेस्ट निकलवा देना चाहिए प्रोफिलैक्टिकली। Now we come to lactation issues. That means we are talking about breast issues during lactation. तो इसमें ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो क्यों आती हैं? प्रॉब्लम्स के 3-4 कारण हैं। अब आप देखेंगे कि 25% पेशेंट जो हैं वो 24 घंटे के अंदर भी फीड नहीं कराते, मतलब 75% तो इनिशिएट कर देते हैं, तो एक तो ये ग्रुप हो गया। फिर सेकंड ग्रुप है 50% लोग जो करते हैं इनिशियल जो थिक मिल्क आता है, कहते हैं खराब है, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसे गिरा देते हैं। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। तीसरा ये कि 75% जो है वो फर्स्ट 72 आवर्स में टॉप फीड यूज करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें लैक्टेशन इश्यू क्रिएट करती हैं। नाउ मदर की साइड से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? एक रिलक्टेंस होती है कि मुझे पेन हो रहा है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं थकी हूँ, मैं नहीं करा सकती इतना फीड। दूसरा एंग्जाइटी और स्ट्रेस होता है, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक से हो रहा है कि नहीं, टेंशन दूध आएगा कि नहीं, या आ रहा है तो एडिक्वेट है कि नहीं, इसका पेट क्यों नहीं भरा, ये क्यों रो रहा है, एंड ऑल। तीसरा इनएडिक्वेट मिल्क, कि इन लोगों को वाकई में मिल्क सप्लाई कम होती है। और चौथा, अगर इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर कोई डिजीज है, एक्जिमा है, इन्वर्टेड निपल है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग है, मेस्टाइटिस है, एंगॉर्जमेंट है, एब्सेस है, कुछ है, तो वो लोग भी नहीं ठीक से फीड करा सकते। बच्चे के साथ क्या कब इश्यू हो सकता है कि बच्चे का बर्थ वेट बहुत ही कम है, तो ऐसे बच्चे अगर सकल करते हैं तो उनका एनर्जी लॉस हो जाता है और उनका फीड फर्दर कम हो जाता है, तो पीडियाट्रिशियन मना करते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट मिल्क से एलर्जी होती है तो भी पीडियाट्रिशियन मना करते हैं। अगर बच्चा सिक है, बीमार है, वो भी नहीं पी पा रहा है, तो प्रॉब्लम है। या बच्चा सकल करते करते बहुत सारी हवा पी गया, स्वॉलोड एयर हो गया, तो भी उसका पेट फूल जाएगा और वो ब्रेस्ट फीड नहीं लेगा। जो बच्चे बर्थ पे एबनॉर्मल होते हैं, जिनको बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो बच्चे भी दूध पीने में तंग करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या हो? तो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में आप समझते हैं कि ब्रेस्ट फूल जाता है, उसके अंदर मिल्क भर जाता है और लिम्फेटिक एंगॉर्जमेंट हो जाता है साथ के अंदर, उसकी वजह से वो मिल्क नहीं निकल पाता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वही है कि आप टॉप फीड बिल्कुल ना दें, अर्ली फीड करें, और एक्सक्लूसिव फीड ऑन डिमांड। दैट मीन्स जब भी बच्चा मांगे तब फीड देने का, और उसको ऊपर से कुछ नहीं देने का। तो इससे आप इसे एंगॉर्जमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं।
और अगर एक बार हो गया तो क्या कर सकते हैं, तो बच्चे को फीड कराएं पहले, उसके बाद बचा हुआ मिल्क मैनुअली या पंप से बाहर निकाल दें। अगर आपसे बहुत पेन हो रहा है तो पेन किलर ले लें और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। दूसरा प्रॉब्लम होता है प्लग डक्ट का। इसमें क्या होता है, मिल्क बहुत स्लोली निकलता है या ब्लॉक हो जाती है डक्ट्स और निकल नहीं पाता, इसमें रेडनेस होती है। तो इसमें एक मेन इशू होता है कि आपकी लैचिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो लैचिंग ठीक से करें। वार्म कंप्रेस मतलब गर्म पानी से सिकाई करें और थोड़ा बहुत पेन किलर ले लें ताकि आप बच्चे को फीड करा सकें। अब क्रैक निप्पल एक ऐसी चीज है जो तकरीबन हर एक को ही हो जाती है। इसमें क्या, या तो स्किन बाहर आ जाती है या जो निप्पल का बेस है उस पर फिशर हो जाता है। मेनली ये दो चीजें प्रॉब्लम होती है। अब इसकी वजह से इसके अंदर से ब्लड और आ जाता है या कभी कोई छोटा बहुत एक पस पॉइंट बन जाता है। अगर पस पॉइंट बन जाता है तो उसको आप एक स्टेराइल नीडल से प्रिक कर लें। बहुत छोटे पस पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। काफ़ी लेडीज लैक्टेशन स्टॉप कर देती हैं, वो नहीं करना चाहिए। जब कभी क्रैक निपल्स होते हैं तो क्या करें, एक तो लैचिंग देखें कि ठीक से है कि नहीं। आप अपना ही मिल्क निकाल के अपने निप्पल और एरियोला पे लगाएं, निप्पल्स को आराम दे दें। दैट मीन्स अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एक निप्पल में तो दूसरी साइड से फीड करा लें और एक साइड से निकालना शुरू कर दें। और लास्टली निप्पल शील्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है तो निप्पल शील्ड लगाने से क्रैक निप्पल्स कम होते हैं। फिर हुआ मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस में क्या होता है, आपका ब्रेस्ट हार्ड होता है, इंगॉश तो हो ही जाता है, उसके साथ में रेड हो जाता है। ये साइन ऑफ अर्ली इन्फेक्शन है, इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। इसके लिए वही आपको बच्चे को इसको सिकाई करनी है, इसमें से एक्स्ट्रा मिल्क निकालना है और दूसरी साइड से बच्चे को फीड करते चले जाना है। अगर ये मेस्टाइटिस टाइम पे कंट्रोल नहीं आता है तो ये एब्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इसमें पस पड़ जाती है। तो पस पड़ने के बाद में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर पस पड़ रही है तो पस को निकालना ज़रूरी है, नहीं तो वो अंदर बढ़ती चली जाती है। अब पस को निकालने के कई तरीके होते हैं। एक होता है कि अल्ट्रासाउंड से हम नीडल डाल के निकालते हैं। अगर छोटी पॉकेट होती है, अकेली पॉकेट होती है, तो और ये निकाल के एंटीबायोटिक देके वो हील हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये कि आप लोग इतना लेट आते हैं, इतना ज़्यादा पस हो जाता है कि उसको चीरा लगा के निकालना पड़ता है। और एक बार चीरा निकालने के बाद उस चीरे से ही पस और मिल्क दोनों ही ड्रिप करता है और उस सिनेरियो में उसको ड्रेसिंग करना पड़ता है और मिल्क लैक्टेशन स्टॉप करना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एक साइड में एब्सेंस हुआ है तो दूसरी साइड से फीड कर सकते हैं। तो इवेंचुअली बच्चे को बहुत मेजर नुकसान हो जाता है और ब्रेस्ट फीड बंद हो जाता है। तो ये रही कुछ ब्रेस्ट से रिलेटेड बातें। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर ब्रेस्ट से रिलेटेड है या अगर कुछ और भी हैं तो मैं कुछ और भी जवाब दे सकती हूँ। तो आई एम ओपन, अगर आपके पास सवाल है तो आप बताइए, क्योंकि बहुत लंबा प्रेजेंटेशन देने से और बोरिंग हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपके सवाल ब्रेस्ट से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आई एम विलिंग टू टेक योर क्वेश्चंस। पलक, क्या आपके पास सवाल हैं? क्वेश्चन आया है कि आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी? ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो तो साइकोलॉजिकल है, कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। ऑब्वियसली शेप चेंज हो जाता है, उसके अंदर अगर इम्प्लांट डालना पड़ता है तो इम्प्लांट की मॉनिटरिंग होती है। कैंसर के बाद में काफ़ी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कीमोथेरेपी वगैरह, तो उससे कॉस्मेटिक इश्यूज हो सकते हैं, स्किन कलर चेंज हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, एपिटाइट, माउथ अल्सर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट अगर कोई बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है और उसका एक्ससीजन हो जाता है तो उसके बाद कोई इश्यूज नहीं रहते। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये टाइम से डायग्नोज किया जाए। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरी स्क्रीन पे कि मैं 21 डेज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हूँ, कहाँ चला गया? आई डोंट नो, इट्स गॉन। सॉरी, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन, इट केम एंड वेंट ऑफ। तो अगर आप डाल सकें फिर से तो। और कोई क्वेश्चंस?
सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में इनका क्या पूछना है कि मैं 3 साल से ले रही हूँ, क्या ये सेफ है? सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोई कैंसर नहीं होना चाहिए, और कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं। अगर वो सारे मैच करते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज ऑफ 35 तक नॉन स्मोकर्स के द्वारा रेगुलरली ली जा सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर एक क्वेश्चन है साथ में है, मैम मेरी बैक फिर भी पेन है, माई डिलीवरी इज थ्रू सिजेरियन सेक्शन। सो द थिंग इज कि जो बैक एक है वो ना नॉर्मल डिलीवरी में होता है ना सिजेरियन सेक्शन में होता है। बैक एक होता है प्रेगनेंसी की वजह से, एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा वेट आने की वजह से बैक के अंदर लोड होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और जब वो हट जाता है और हम बैक की एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो बैक के अंदर पेन शुरू हो जाता है। तो एक कैट एंड कैमल करके एक्सरसाइज आती है, अगर आप रेगुलर करें तो हाई चांस है कि आपका बैक एक ठीक हो जाएगा। फाइब्रोएडिनोमा के बारे में, कैन बी रिड्यूस द साइज। तो फाइब्रोएडिनोमा के बारे में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, साइज रिड्यूस नहीं होता, लेकिन इसे मॉनिटर करना चाहिए। अगर ये रैपिड ग्रोथ है तो इसे निकालना पड़ेगा। अगर ये छोटा फाइब्रोएडिनोमा है और अल्ट्रासाउंड के अंदर कोई फीचर सजेस्टिव नहीं है, उसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन कोई भी ट्यूमर जब तक उसकी बायोप्सी नहीं होती तब तक 100% नहीं कहा जा सकता कि वो नॉन कैंसरस है। अगर आप कुछ भी नहीं कराना चाहती तो कम से कम MRI जरूर करवाएं एक बार देखने के लिए, और या एक बार FNAC करा ले, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। और अगर वो नेगेटिव है तो हाई चांस है कि इसमें कुछ नहीं करना, बट एनुअल मॉनिटरिंग तो बनती ही है। सो इट इज अ ब्रेस्ट माउस, इट इज अ सॉलिड ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट। ये पत्ता गोभी की तरह का ट्यूमर होता है जो कि इसेंशियली नॉन कैंसरस होता है, जो कि इसेंशियली नॉन कैंसरस होता है। इसका साइज रिड्यूस करने का ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। अगला क्वेश्चन आया है, अगर बहुत इची और सोर निपल्स हैं तो क्या करना चाहिए? सोर निपल्स जो हैं उनके लिए अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर रहे हैं फिर तो आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के ट्रीट करना होगा। लेकिन अगर आप फीड कर रहे हैं तो निपल शील्ड यूज करें, अपना खुद ही का मिल्क लगाएं। लैनोलिल क्रीम्स मिल जाते हैं बाहर में, लैनोलिल, ये इन्हें भी लगा सकते हैं, उससे भी काफी आराम आ जाता है। और मिल्क को बराबर एक्सप्रेस करें। अगर बच्चा नहीं ले रहा है तो थोड़ा सा मिल्क पहले निकाल दें, उसके बाद ब्रेस्ट को थोड़ा सॉफ्ट करके फिर बच्चे को फीड कराएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है तो स्किन स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा लें। व्हाट इज अ सिस्ट? सिस्ट कहाँ पर है इस पे डिपेंड करता है। अब सिस्ट जो है वो कहीं भी हो सकती है। तो हम जो सिस्ट की बात कर रहे हैं वो आप कॉमनली ओवेरियन सिस्ट की बात करते हैं। तो सिस्ट जो होती है वो जनरली वाटर फिल्ड बलून्स होते हैं जो अपीयर और डिसअपियर हो जाते हैं अपने आप से। लेकिन ये जो सिस्ट हैं ये भी कैंसर भी हो सकता है इसमें। तो अगर कोई परसिस्टेंट सिस्ट है जो डिसअपियर नहीं होती है, या उसमें कोई सॉलिड कंटेंट है, या उसमें ब्लड है, पस है, तो फिर उनको ऑपरेट किया जाता है। पर ज़्यादातर सिस्ट को कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से डिजोल्व हो जाती हैं। तो आप शायद ओवेरियन सिस्ट की बात कर रही हैं, अगर आप किसी और की बात कर रही हैं तो प्लीज स्पेसिफाई करें। Can you please explain benign breast condition? What can be symptoms and what should we do? Now, benign breast condition, essentially, we talk about fibroadenoma and fibroadenosis. फाइब्रोएडिनोमा में क्या होता है कि एक 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 या दो या तीन
बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसी तरह से ट्यूमर होते हैं। इनके साइजेस वेरी फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। इनको अगर आप पकड़ेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, इन्हें ब्रेस्ट माउस बोलते हैं। अगर आप इनको फील करेंगे तो इनकी कंसिस्टेंसी वुडी होती है, जैसे लकड़ी का कुछ पीस रखा हो ब्रेस्ट के अंदर। ये उतने हार्ड नहीं होते जितने कैंसर होता है। कैंसर जो होता है वो नीचे वाली स्किन से चिपका होता है, अगर आप उसे पकड़ेंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा और उसकी मार्जिन्स इरेगुलर होंगी। फाइब्रोएडेनोमा की मार्जिन्स रेगुलर होती हैं। तो ये तो हो गया फाइब्रोएडेनोमा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स तो कुछ खास नहीं होते। आपको जस्ट ब्रेस्ट में जब टच करते हैं तो आपको वहाँ पे एक लंप महसूस होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाहर से स्किन बिल्कुल बराबर दिखती है, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा दुबली हों और फाइब्रोएडेनोमा बहुत बड़ा हो, तो वो स्किन जो है ऊपर से स्किन के अंदर थोड़ा नीचे से थोड़ा माउंटेन दिख सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं दिखता। जो फाइब्रोएडेनोसिस होता है उसमें इसी तरह के बहुत सारे छोटे-छोटे नोड्यूल्स होते हैं स्कैटर्ड ऑल ओवर द ब्रेस्ट। तो उसके लिए कुछ तरह की मेडिसिन दी जाती है, जैसे ऑयल ऑफ इवनिंग प्रिमरोज़ वगैरह। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता और कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, बिकॉज़ ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं। You can put your questions in the chat box. Ma'am, I am facing unexplained infertility. Can I go with IUI? Yes, absolutely. जब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो जाती है दैट मीन्स आपके पास कोई भी फैक्टर नहीं मिला, आपने सब कुछ टेस्ट कर लिया। अब सब कुछ टेस्ट में ये है कि आपका AMH भी नॉर्मल है, आपका फॉलिकुलर स्टडी भी ठीक है, सीमन एग्जामिनेशन भी ठीक है और ट्यूब्स भी ठीक हैं। तो इन दिस लाइट यू शुड मूव ऑन एंड डू IUI, डू नॉट डिले। IUI is better done when you do it with injections than with tablet, but it will be your choice because with injection the cost goes up. So you may decide whether you want to do IUI with tablets or injections, but you must do at least 3 cycles of IUI before dropping it. So does IUI and IVF increase the size of fibroadenoma? Certainly not. Certainly not. These procedures have no impact on the size of fibroadenoma. कोई इम्पैक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, दोनों का अलग अलग एक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी एज के हिसाब से ही ग्रो करता है, एज के हिसाब से अपीयर होता है और ग्रो करता है। तो इतना कोई इशू नहीं है फाइब्रोएडेनोमा का, लेकिन अगर आप बहुत परेशान हो रही हैं तो आप इसे निकलवा सकती हैं। आफ्टर 10th and 11th day of my periods, I feel pain in my breast and severe gastric problem. Why so? ये कुछ बात कम समझ आ रही है बिकॉज इस तरह का पेन जो होता है वो जनरली प्री मेंस्ट्रुअल होता है, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं। दैट मीन्स जब जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं तो उस टाइम आपको ये इस तरह का पेन होता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपको ये मिड साइकिल 11th और 12th डे के आसपास होता है, 10th या 11th डे के आसपास होता है तो ये हार्मोनल ही, और जनरली उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू हो जाता है, तो शायद उस वजह से है। गैस्ट्रिक इश्यू होना तो नहीं चाहिए, बट इसका ट्रीटमेंट यही है कि आप कुछ एंटासिड ले लें। पेन इन द ब्रेस्ट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न और नो, देयर इज नो लम्प बट देयर इज पेन। सो अगर ब्रेस्ट में पेन है तो अगर इन्फेक्शन है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ब्रेस्ट में पेन बहुत कॉमन फिनोमेना है जो हार्मोनल होता है। उसके लिए कुछ तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बट टिपिकली ब्रेस्ट कैंसर कभी भी पेनफुल नहीं होता, फाइब्रोएडेनोमा में भी पेन नहीं होता है। पेन या तो इन्फेक्शन में होता है या हार्मोनल डिस्टर्बेंस में होता है, इनमें से दोनों ही डेडली नहीं है। My breast gets too much saggy, even I don't feed my child, what to do? So breast gets saggy with age. अब इसमें बड़ा ही रेलेवेंस ये है
कि जिन्होंने हमें बहुत सालों तक फीड कराया उनके ब्रेस्ट भी शेप ले लेते हैं, और जिन्होंने कभी भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराया उनके ब्रेस्ट भी जब एनलार्ज होते हैं प्रेगनेंसी में बाद में श्रिंक हो जाते हैं तो सैग कर जाते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ ब्रेस्ट फर्मिंग जेल्स आते हैं उनको ट्राई करें। अदरवाइज फाइनल ऑप्शन तो सर्जिकल ही रहता है जो कि कॉस्मेटिक सर्जन करते हैं, ब्रेस्ट लिफ्टिंग, या फिर आप एक वेल फिटेड ब्रा पहन के एक अनसैग्ड ब्रेस्ट का लुक दे सकते हैं। Before periods, my breasts are heavy and I cannot touch it, and after periods, it is normal. What should I do? Is it normal? इसको PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जहाँ पे पीरियड से जस्ट पहले ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाते हैं और पीरियड्स आते आते बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं। जनरली ये एजुकेटेड सिटी वुमेन में होता है हु आर अंडर स्ट्रेस। सो अगर आप योगा मेडिटेशन रिलैक्सेशन वाकई में दिल से करें तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। पर हम लोग जब योगा भी करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है और उस लाइफ में फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर आप चाहें तो कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी इस चीज़ को प्रिवेंट करती है। तो अगर आपको बेबी नहीं चाहिए और आपकी एज यंग है, आप फिट हैं, तो आप कुछ महीने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी खा सकती हैं। Thank you. Thank you for today's presentation. We enjoyed talking to you. If any other queries, you may drop a question on my telephone number 9910907222. I will repeat once more. If you want to take it down, 9910907222. That's my phone number, WhatsApp number. You can WhatsApp your questions and just mention that this is through Credi Health webinar. Thank you very much. Have a good day.